Everyone, welcome to my YouTube channel. Guys, I'm Manjeet Rawat, your online instructor. And in this class, I'm going to guide you about the concept of cloud computing. And you know that nowadays we have a n number of cloud providers are available, like as Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, and Alibaba. But if you really want to understand about the concept of cloud technology, so you should know about the usage of, you can say that the meaning of pillars of cloud computing. सो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पिलर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि 3 डिफरेंट पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. यू नो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज. If you have idea about these 3 important pillars, so you are able to manage the services of Amazon Web Services or Microsoft Azure and about the Google Cloud as well. Means अगर आपको backend का concept पता है, if you understand about the infrastructure that is established by the cloud service provider, so definitely you are able to perform the tasks which are available on our portal. So let's talk more about infrastructure, platform and software as a services. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं about the infrastructure as a services. As per the name suggests, the meaning of infrastructure as a services is also considered as a manageable services, right? इसको हम बोल सकते हैं manageable services. The meaning of manageable services, those services you are able to perform, those services you are able to manage by self. जैसे कि मल्टीपल एग्जांपल्स हैं. इस केस में क्या होगा, up to 75% टास्क मैनेज बाय यूजर्स, ठीक है, एंड अप टू 25% एक्टिविटी managed by the providers. Provider in the sense I am talking about the Azure provider. Azure हो सकता है, Google Cloud हो सकता है, या फिर Amazon Web Services हो सकते हैं. 25% एक्टिविटी मैनेज बाय द प्रोवाइडर्स एंड 75% टास्क मैनेज बाय अस. यानी जो कस्टमर है, जो Azure पोर्टल या AWS पोर्टल को यूज कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 75% टास्क को मैनेज कर पाए. Now we have a number of examples related to the manageable services, like as we are able to find वर्चुअल मशीन की बात करें, यहां पे अगर हम स्टोरेज सर्विसेज की बात करें या फिर नेटवर्क की बात करें, इनमें से कोई भी टास्क आप परफॉर्म करते हैं, चाहे वो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की बात करें, स्टोरेज की बात करें या नेटवर्क की बात करें, ये सभी सर्विसेज, ये सभी एग्जांपल्स होते हैं हमारे यू कैन से दैट मैनेजेबल सर्विसेज के. बिकॉज इन केस ऑफ मैनेजेबल सर्विसेज क्या होता है कि इसमें जो भी एक्टिविटी है, जो भी चेंजेस हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज बाय सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक इंस्टेंस परचेज किया, एक वर्चुअल मशीन परचेज की विद कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 GB ऑफ रैम, 2 GB ऑफ प्रोसेसर एंड 100 GB ऑफ हार्ड ड्राइव, राइट. आफ्टर फ्यू डेज, 1 month या 2 month के बाद आपको रियलाइज होता है कि नहीं, द कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट इनफ, यू नीड टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन. तो उस केस में यू आर रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द रैम और प्रोसेसर बाय सेल्फ. आप अपनी तरफ से जो भी ऑप्शंस मिलेगा वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टी पे, उस ऑप्शन का इस्तेमाल करके उस रैम की या हार्ड डिस्क की या प्रोसेसर को चेंज करते हैं, ताकि आप अपने उस मशीन के अंदर हार्डवेयर को इंक्रीज कर सकें. Azure will not help you. Azure केवल आपको ऑप्शन दे देगा, जो भी टास्क परफॉर्म करना होगा, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू डू दैट. एज इट इज स्टोरेज का एग्जांपल की बात करें तो स्टोरेज के केस में अगर आपने 100 TB का स्टोरेज परचेज किया है और आफ्टर 6 month यू रियलाइज कि 100 TB की जगह पे 200 TB हमें यूज करना था, तो आप एग्जिस्टिंग स्टोरेज को कैसे आप 200 TB में कन्वर्ट करते हैं, 200 TB में कन्वर्ट करते हैं, वो भी टास्क आपको मैनुअली परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट. This is the concept of infrastructure as a services. In other words, you can say that it considered as a manageable services, जिसमें आप user or customer responsible to manage the services by self. Let's talk about the platform as a services. The meaning of platform as a services अगर हम यहाँ पे बात करें तो PaaS क्या है? Platform as a services considered as a unmanageable services, right? Unmanageable services like as Azure will offer you एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करेगा. उस पैकेज के जरिए आप अपनी चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल, आपको एक वेबसाइट होस्ट करनी है, राइट. आपको एक वेबसाइट होस्ट करनी है या गेम होस्ट करना है या आपको डेटाबेस होस्ट करना है, तो वी हैव 2 different ऑप्शन. एक, आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करके उसमें IaaS के जरिए या अपाचे सर्विस के थ्रू आप उस वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, जिसमें हर एक स्टेप आपको अपनी तरफ से परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट. इफ यू प्रोसीड विद इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज पे जाते हैं तो Azure वेब ऐप परचेज करेंगे.
In the Azure Web Application Services, we are able to just purchase the service, upload our data, and within minute you are able to host your website to worldwide. 5 मिनट के अंदर आपकी जो वेबसाइट है वर्ल्ड वाइड किसी भी लोकेशन से आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। क्लियर? तो अगर हम एग्जांपल की बात करें प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के अंदर, तो मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। द एग्जांपल्स ऑफ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज आर, यहां पे हम बात कर लेंगे लाइक एज अनमैनेजेबल सर्विसेज, ये आपकी अनमैनेजेबल सर्विस कहलाएगी। ठीक है, अनमैनेजेबल सर्विस के केस में क्या होता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो 75% टास्क मैनेज बाय द प्रोवाइडर एंड 25% टास्क मैनेज बाय यूजर। मींस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, सिर्फ 25% के टास्क को मैनेज करना, बाकी की 75% टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइडर की होगी। वी हैव अ मल्टीपल एग्जांपल लाइक एज एज्योर वेब ऐप। ठीक है, एक सर्विस है एज्योर वेब ऐप का, और अनदर सर्विस की बात करें तो एज्योर सीक्वल इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। इन सभी सर्विसेज का इस्तेमाल करके एज्योर वेब ऐप के केस में आप कोई भी वेबसाइट, .NET की वेबसाइट, ठीक है, PHP की वेबसाइट या जावा की वेबसाइट आप होस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर या जावा इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपाचे या IIS सर्विस इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जिस एज्योर वेब एप्लीकेशन परचेज करेंगे, अपलोड योर डेटा, सेलेक्ट द प्लेटफॉर्म एंड अपलोड योर डेटा, एंड विद इन मिनट यू आर एबल टू होस्ट योर वेबसाइट टू वर्ल्ड वाइड। एक प्री पैकेज रहता है, कंप्लीट पैकेज रहता है, प्लेटफॉर्म रहता है, जहां पे हमें केवल प्लान सेलेक्ट करना है कि हमें कॉन्फ़िगरेशन का प्लान क्या चाहिए, एंड दैट्स इट। यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट द प्लेटफॉर्म एंड अपलोड योर डेटा। दिस इज द प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। लास्ट बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज के केस में। एज पर द नेम सजेस्ट द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, मल्टीपल एग्जांपल्स हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज के केस में। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज के केस का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है आपका ऑफिस 365, राइट। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका ऑफिस 365, या फिर एज्योर AD इज आल्सो अ टाइप ऑफ ऑफिस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। ये दो एग्जांपल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मींस हाउ दे कैन परफॉर्म द टास्क। Office 365 is a mailing service that can help us to set up our mail services for any organization. आप अपनी organization के लिए mailing service को establish करना चाहते हैं, then software as a services can help us. इसमें क्या करना होता है, we just need to sign up ourselves and purchase a subscription या license, और उस लाइसेंस के अकॉर्डिंग जो भी फीचर उस लाइसेंस के अकॉर्डिंग होगा आप उस लाइसेंस की हेल्प से होस्ट कर सकते हैं। एज्योर AD एक बिल्ट इन सर्विस है जिसमें आप सिक्योरिटी को मैनेज करना चाहते हैं या फिर कंट्रोल करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन या प्रोग्राम्स को या पूरे पोर्टल को, देन एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी कैन हेल्प अस। इन अदर वर्ड, आउट ऑफ क्लाउड अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज की, तो जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स की बात कर लें, अमेजन की बात कर लें, अमेजन प्राइम की बात कर लें, हॉटस्टार की बात करें, ये सभी जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये सभी एग्जाम्पल्स हैं आपके सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज के। तो अगर इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन पुट अप करता है व्हाट आर द पिलर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो आप ये 3 डिफरेंट पिलर्स के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। इन तीनों की हेल्प से हम अपने पोर्टल पे दिखने वाले हर एक सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं, हर एक ऑप्शन को कंट्रोल और उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। गाइस, उम्मीद है कि आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे जो भी हमने डिस्कस किया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी डाउट, ड्रॉप अ कमेंट, डेफिनेटली आई हेल्प यू। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, डिस्कस मोर अबाउट द क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड वर्चुअलाइजेशन। थैंक यू, डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय बाय।